Class 12th, Political Science, Chapter 2, The End of Bipolarity. In the previous video, we done the first topic, what was the Soviet system. In this video, we will do Gorbachev and the disintegration. We will do this topic, Gorbachev and the disintegration, till here. It's page number 19 and page number 20 of your NCERT book. Page number 31, Gorbachev and the disintegration. For understanding this topic, we need to understand first about few leaders of the USSR, those who have run the system, run the political and the economical sphere of USSR or the Soviet Union. Who was Gorbachev basically? Gorbachev was the last leader of the USSR. He ran the administration or the economical or the political aspect of the Soviet Union from 1985 to 1991. As you can see, the time period is till 1991, which means to say that he was the last leader, and after his governing system, USSR disintegrated. Okay, and that's why whenever we talk about the disintegration of the USSR, we used to blame Gorbachev and his policies, and we used to write about Gorbachev, what were his economical policies, what was his political aspects, and what kind of policies he introduced for the reforms in the USSR. And first we need to understand about few leaders, because CBSE used to ask in 2-mark question and sometimes in 4-mark questions as well. And the leaders, those who have run the system, is like Joseph Stalin. He was the leader of the USSR from 1924 to 1953. We are not going to discuss about all the leaders, but we will focus on very few of them, over which the CBSE has given a short and brief introduction about them. The next one is the Nikita Khrushchev, 1953 to 1964. We have seen his name in the Cuban Missile Crisis when we were doing the chapter number 1. The next one is Leonid Brezhnev. He was the leader from 1964 to 1982. One of the important one you must have seen. You must remember this cartoon we have discussed in chapter 1, and the person or the gentleman who is sitting over the bench, USSR, so he was the person who was Leonid Brezhnev. Then second last person in our list is Mikhail Gorbachev. He ran the system from 1985 to 1991, very important one, and we used to write about him and about his name, and we used to write his name again and again in the answers, so that's why the person is very important. Last in the list but not the least, the first elected president of the Russia, Boris Yeltsin. He ran the political and the economical sphere of Russia only in 1991 to 1999. Mikhail Gorbachev इसलिए important है because he was the last leader, and बोरिस येल्सिन के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं रशिया के, या फिर ये कहा जाता है कि मिखाइल गॉर्बाचेव की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने वाले या वन ऑफ द इफ़ेक्टिव लीडर्स रहे हैं लास्ट टाइम पीरियड पर, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के टाइम पीरियड पर, जिसको लोगों ने बहुत एडमायर किया, वो बोरिस येल्सिन रहे. तो इनके बारे में ब्रीफ में बुक में बताया गया है बेटा. जैसे कि यहाँ पर हम व्लादिमीर लेनिन की बात करते हैं. ही वॉज द फर्स्ट लीडर, और बेसिकली ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन ड्यूरिंग द रशियन रिवोल्यूशन इन 1917. ही वॉज द फाउंडिंग लीडर ऑफ यूएसएसआर, व्लादिमीर लेनिन. इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स के बारे में, या फिर जिन लीडर्स के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है बहुत ज़्यादा ब्रीफ में. यहाँ पर हम लोग जोसेफ स्टेलिन की बात करते हैं, जो लिस्ट में सबसे पहले थे हमारे पास. इसके अलावा हम लोग बात करेंगे बुक में द निकिता खुश्चेव. मतलब ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट येस 2 मार्क का क्वेश्चन आपके पास
आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज है ब्रेजनेव, जिनको अभी दोबारा हमने कार्टून में देखा, फर्स्ट चैप्टर में कार्टून में इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। एंड हेयर इज मिखाइल गॉर्बाचेव। और यहाँ पर आपके पास बोरिस येल्सिन है नेक्स्ट पेज पर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट येस आपको इसे लर्न करना पड़ेगा फॉर ग्रास्पिंग द 2 मार्क्स फ्रॉम द CBSE और इन योर बोर्ड। अब अगर हम नोट्स के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, नोट्स का पेज नंबर 31 अभी हम देख रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट पॉइंट है आपका व्लादिमीर लेनिन। इनके बारे में अभी हम लोगों ने इनका फोटोग्राफ देखा और इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। बट येस अभी आपको लर्न करने के लिए याद रखना दैट ही वॉज द लीडर ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 एंड फाउंडिंग लीडर ऑफ द USSR। फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका मिखाइल गॉर्बाचेव। ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। तो 1985 के अंदर पावर इनके पास आती है और वो USSR के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। विद दिस पोस्ट उनके पास कुछ पावर्स आती हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए। इसी वजह से सेकेंड पॉइंट के अंदर हम लोग देखते हैं दैट कि ही इंट्रोड्यूस्ड some economic and political reforms in USSR. He introduced 2 major policies. In the third point we have written the first one is the Petraiska and Glasnost. दोनों का मतलब ब्रैकेट में लिखा गया है रीस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस, यानी कि आप सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में और आप सिस्टम के अंदर ओपननेस लाने की बात कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। अब ये सारी पॉलिसीज़ क्यों इंट्रोड्यूस की गई, एक बार ज़रा पहले उन्हें समझ लेते हैं। हम लोग जब बेटा मिखाइल गॉर्बाचेव के बारे में बात करते हैं तो बार बार हमारे सामने उनका नाम एज अ लाइक लास्ट लीडर की तरह भी आता है। कई बार पॉलिसीज़ के अंदर आप पढ़ेंगे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। बट जब भी हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमें इस चीज़ का एक आइडिया लग जाता है कि जब 1985 में उनके पास सारी पावर आती है एज अ जनरल सेक्रेटरी, तो ही गॉट टू नो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, और वो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए प्लानिंग करते हैं और वो कुछ पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस करते हैं। बट आप एक चीज़ देखिए कि 1917 में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ पर आप सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं क्योंकि आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आप लेबर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि आप एक तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। और एंड तक आते आते जो सिस्टम है रशिया के डोमिनेंस में या एक अथॉरिटेरियन गवर्निंग सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। और बाद में जो मेंबर नेशंस है, रशिया के अलावा जो 14 मेंबर नेशंस हैं इंक्लूडिंग रशिया हरसेल्फ टू, नेशंस को USSR में रहने के बाद ऐसा फील होने लगता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो वेस्ट या USA के अलाइंसेस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पीछे है। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने तब भी देखी जब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। तब भी हम लोगों ने देखा कि एंड तक आते आते अथॉरिटेरियन गवर्निंग सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी का ख़त्म हो जाना, इकॉनमी के ज़्यादातर जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा आप कहीं ना कहीं मिलिट्री पर खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे हमें एक ये आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो अब मिलिट्री पर ज़्यादा फोकस कर रही है, वो लोगों को कंट्रोल करना चाह रही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाह रही है, और वो नहीं चाहती कि लोग वेस्ट से ज़्यादा इंस्पायर हो। बट कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस है कि पीपल आर अवेयर कि किस तरीके से वेस्ट में डेवलपमेंट चल रहा है और हमारे यहाँ पर नहीं। लोग डिमांड करना शुरू करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो हमें भी मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को राइट टू स्पीच नहीं मिल रहा, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। और सिंगल पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट है तो कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिल रही है। अब
इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करने के बाद जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं वो 2 पॉलिसीज सामने इंट्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बेसिस पर। बाकी सेक्टर्स में इतना प्रॉब्लम उनको फेस नहीं, तो जो मेजर सेक्टर्स हैं इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पर उस पर वो चेंजेस लाने के लिए बात करते हैं। और पेट्राइस्का और गैलेस्तानोस्त नाम से पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जिसमें मेजर उनका जो रीज़न है वो है इकोनॉमी में और पॉलिटिकल लेवल पर ओपननेस लेकर आना। बाकी जो उनका एस्पेक्ट है वो ये कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। बट आप एक चीज़ ना प्लान कीजिए कि अब तक आप एक रिजिड और एक डोमिनेटिंग गवर्निंग सिस्टम के साथ काम कर रहे थे, और एक टाइम पीरियड आपके गवर्नमेंट ऐसा देती है आपको कि आपके पास ओपननेस है, आपके पास राइट्स हैं जैसे कि डेमोक्रेसी में आपको दिए जाते हैं, आपको अलाउ किया गया है कि आप अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, आपको ये सारे राइट्स एकदम से दे दिए गए हैं बाय दी मिखाइल गोर्बाचेव। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बार जब आपके पास राइट्स, पावर्स, अथॉरिटी या बाकी सारे बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट देना शुरू कर देगी तो आप उन राइट्स के बिना, उन पावर्स के बिना काम कर पाएंगे? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो चीज़ें एकदम से मिखाइल गोर्बाचेव अपनी पॉलिसीज़ के अंडर लोगों को दे देते हैं और लोग उन सारी पॉलिसीज़ या पावर्स को ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी मिखाइल गोर्बाचेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, उसके अलावा भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दूसरे, वो भी कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं बार बार कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत जल्दी और ज़्यादा रिफॉर्म्स करना लाना चाह रही हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप एकदम से आपने जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं ये सारे रिफॉर्म्स स्टेप बाय स्टेप चलने चाहिए थे, अब लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक तरीके से सही भी था। और जितना, और अगर हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन की, वाई वी यूज टू ब्लेम मिखाइल गोर्बाचेव फॉर द डिसइंटीग्रेशन, बिकॉज जब रिपब्लिक नेशंस ने, यूएसएसआर के टीम के मेंबर्स ने या नेशंस ने, स्पेशली फ्रॉम द सेंटर एशिया, जब नेशंस ने उनको जाने के लिए कहा कि भाई हम आपकी टीम का मेंबर नहीं बनना चाहते, ईस्ट यूरोपियन नेशंस उनको कह रहे हैं कि हम आपकी अलायंसेस का मेंबर अब नहीं बनना चाह रहे, हमें आप छोड़ दीजिए, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, हम सोवरन नेशंस बन के रहना चाहते हैं, हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कोई एफर्ट्स नहीं किए उनको अलायंस में बांधकर या बनाकर रखने के लिए। तो जब ये एक ओपननेस दी गई है मेंबर नेशंस को, तो इस ओपननेस को नेशंस ने एंजॉय किया है, और नेशंस ने अपने सोवरन और इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करने के लिए यूएसएसआर को धीरे धीरे करके अलग होते चले गए, जिसमें ईस्ट यूरोपियन नेशंस, सेंटर एशिया के नेशंस इंक्लूडिंग रशिया को भी लगने लगा कि अब मैं किसी भी टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करना चाहता। हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। सेकंड पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है, ही इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, in the USSR particularly. Third point, introduction of the Petraiska, which is like restructuring, and Glasnost, which is also known as the openness. But बेटा एग्जाम में आपको Petraiska और Glasnost वर्ड यूज़ करने हैं, restructuring और openness जैसे वर्ड सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, both the policies were criticized by people, यानी कि जो USSR की पॉपुलेशन है वो भी क्रिटिसाइज कर रही है, and by his own political party too। अब जो उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उनमें रिफॉर्म्स लाने, जो भी इंट्रोडक्शन किया है, जिस तरह से इंट्रोडक्शन किया है वहाँ पर वो चेंजेस लाने के लिए कहती है। आफ्टर दैट जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अ मिलिट्री कूप टुक प्लेस इन 1991 दैट वाज समहाउ एनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और encouraged by the Communist Party leaders because they don't want to work under the Gorbachev and want to change policies। अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से देखें तो मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पीरियड में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स जो हैं मिलिट्री कूप को प्लान करते हैं कि वहाँ पर अटैक किया जाएगा, या एनकरेज करते हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब हम लोग किसी भी तरह से मिखाइल गोर्बाचेव के साथ काम नहीं करना चाहते।
इसके अलावा बेटा जब हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर 32, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है दैट द पॉपुलर जो पॉपुलेशन है ऑफ द यूएसएसआर स्पेशली फ्रॉम द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल। अब ओल्ड स्टाइल रूल का मतलब यहाँ पर किससे है? ओल्ड स्टाइल रूल का मतलब है एक आपके कम्युनिस्ट और आपका जो सोशलिस्ट गवर्निंग सिस्टम है। आइडियोलॉजी की बात की जाएगी, आप बार बार याद रखें कि आइडियोलॉजी इज कंपेरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट। ओल्ड स्टाइल जो रूल है अथॉरिटेरियन तरीके से काम करने का, कम्युनिस्ट पार्टी का सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने का, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने का, वो नहीं चाहते। एंड दे वांट फ्रीडम। फ्रीडम कब मिलेगी? जब डेमोक्रेसी आएगी। तो डेमोक्रेसी के अंदर मिलने वाली फ्रीडम को, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, जो कि लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम में मिल सकती है, और वो वही डेवलपमेंट या वैसी डेवलपमेंट चाहते हैं जैसे कि वेस्ट नेशन एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर वेस्ट नेशन का मतलब उन नेशंस से हैं जो कि यूएसए की अलायंसेस का पार्ट है। नेशंस एंड वांट टू एंजॉय डेमोक्रेसी एज वेस्ट नेशंस वर डूइंग, क्योंकि डेमोक्रेसी आने के बाद उनको पावर, फ्रीडम, राइट्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और यूएसएसआर की पॉलिसीज़ को फॉलो करने के बाद उनको ओल्ड स्टाइल रूल जो है सोशलिस्ट गवर्निंग सिस्टम का, जहाँ पर उनके पास राइट टू स्पीच भी नहीं है, वो वैसी गवर्निंग सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा बोरिस येल्सिन। अगेन मैंने आपको कहा था कि जो लीडर्स के नाम हमने वीडियो के बिल्कुल बिगनिंग में देखे हैं उन नेम्स को हम बार बार दोबारा देखेंगे, और पूरे चैप्टर में कई बार नेशंस के नेम या फिर लीडर्स के नेम रिपीट होंगे। बोरिस येल्सिन जो है emerged as a national hero in opposing this coup। अब पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग कूप को लॉन्च करते हैं, यानी कि आप छोटी मिलिट्री या सोल्जर्स को नेशंस के अलग अलग जगहों पे फैला देते हैं और वहाँ पर आप छोटे मोटे अटैक्स कराते हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस आती हैं। बोरिस येल्सिन एक ऐसे लीडर की तरह सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अब इस सिचुएशन को सारा संभाल लूँगा, आप बस मुझे एज ए लीडर चूज़ कर लीजिए। और वो मिखाइल गोर्बाचेव को हटाने में, इन कूप्स को कंट्रोल करने में, यानी कि समहाउ आप ये भी कह सकते हैं कि उसने लॉन्च भी किया पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प से, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से, क्योंकि पार्टी भी नहीं चाहती मिखाइल गोर्बाचेव काम करें। अब पार्टी किसको हेल्प कर रही है? बोरिस येल्सिन को हेल्प कर रही है। और उसी पार्टी की हेल्प लेकर बोरिस येल्सिन जो है नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हो जाते हैं। कहाँ पर? यूएसएसआर में, स्पेशली कहाँ पर? आपके रशिया में। बोरिस येल्सिन won election in Russia which was central government of the USSR and weaken the centralized control। अब weaken the centralized control करने का क्या मतलब है? जो नेशन सेंटर एशिया का, ईस्ट यूरोप का छोड़ के जाना चाहता था यूएसएसआर को, वो तो मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पीरियड पे छोड़ के जा चुके। बचा कौन? सिर्फ रशिया बचा। तो रशिया में इलेक्शंस कराए जाते हैं और सभी जो अलायंसेस हैं उनको रिपब्लिक कर दिया जाता है, उनको सोवरेन पावर दे दी जाती हैं, और बोरिस येल्सिन जो है इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट की तरह रूल करते हैं। स्लोली पावर शिफ्टेड फ्रॉम द सेंटर टू द मेंबर नेशंस। अब ज़रा बेटा इसे ध्यान से देखेंगे कि रशिया, जिसको हम पहले कह सकते हैं कि 15 नेशंस के ग्रुप की तरह काम करा, और यूएसएसआर की जो सारी की सारी पावर्स थी वो यहीं रही। और इसके अलावा जितने भी रिपब्लिक नेशंस हैं, ईस्ट यूरोप के हैं या सेंटर एशिया के हैं, चाइना के हैं, रशिया से इंडिपेंडेंसी ले ली या फिर यूएसएसआर से इंडिपेंडेंसी ले ली और रशिया बच गया सिर्फ और सिर्फ। सारी की सारी पावर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, यानी कि अब वो नेशंस इंडिपेंडेंट है, जैसे चाहें अपने देश को चला सकते हैं। नाउ दे आर एबल टू टेक देयर ओन डिसीजंस एंड बिकम सोवरन नेशन। सोवरन वर्ड आपने क्लास 11th में पढ़ा है, यानी कि अब नेशंस डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास खुद की है। उनके डिसीजंस लेने के लिए उनको रशिया के पास जाने की या यूएसएसआर जैसे किसी भी दूसरे अलायंस को फॉलो करने की ज़रूरत अब उन्हें नहीं है। बेटा इस टॉपिक के अंडर जो पॉइंट नंबर 10 या उसके आगे वाले पॉइंट्स को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप एक चीज़ मानिए कि 1917 के अंदर यूएसएसआर बनाया गया। अब 1917 के बाद से लेके 1991 का जो टाइम पीरियड है, बहुत लंबा अरसा, 50 से ज़्यादा साल इन 15 देशों ने एक साथ निकाले हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ टाइम पीरियड में आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप नेशन को पूरी तरीके से छोड़ के चले जाएंगे और जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे अलग होने को तैयार हो जाएंगे। कुछ नेशंस
ऐसे भी आए जिन्होंने रशिया से रिक्वेस्ट किया और रशिया को एक पावर देने की बात की और ये कहा गया कि हम आपके साथ ही रहकर काम करना चाहते हैं और हम अपने आप को सोवरन या इंडिपेंडेंट नेशंस की तरह नहीं देखना चाहते और हम अपनी जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है सारी की सारी आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, जिसमें ज़्यादा जो नेशंस के नेम्स अगर काउंट होते हैं तो वो सेंटर एशिया से थे। सेंटर एशिया के लगभग 4 से 5 नेशंस जैसे कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सभी वो नेशंस रहे जिन्होंने मेजॉरिटी में कहा कि हम रशिया के साथ मिलकर ही काम करना चाहते हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट या सोवरन नेशन की तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते। और ईस्ट यूरोपियन नेशन जो थे बेसिकली उनको पूरी तरीके से प्योर इंडिपेंडेंसी चाहिए थी, सारा डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए था। और जब नेशंस ने एक विल दिखाया कि हम अभी भी हमारा जो पुराना नेशन है यूएसएसआर है उसी की तरह काम करना चाहते हैं, पर रशिया किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या फिर ये कहा जाए कि यूएसएसआर की तरह आगे पावर को कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो भी जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सेंटर एशिया और ईस्ट यूरोपियन नेशंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, सेम प्रॉब्लम्स जो है आपका रशिया भी फेस कर रहा था। तो रशिया को भी अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज करना है, इसलिए वो ऐसा कोई पावर या अथॉरिटी इंजॉय नहीं करने के लिए इच्छुक था। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा है तब ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया, बट हाँ डिसइंटीग्रेशन के कुछ टाइम पीरियड बाद, ऐसे नहीं कि सालों लग गए, बट हाँ जल्दी ही एक डिसीजन ले लिया गया कि हम एक CIS के नाम से एक इंस्टीट्यूशन तैयार करेंगे और हम सभी नेशंस, ऐसा नहीं है कि हम एक अथॉरिटी या पावर के अंदर रहकर काम करेंगे, हम अपनी इच्छा से इस CIS को ज्वाइन कर सकते हैं। ये CIS क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो CIS को ज्वाइन कर सकते हैं। CIS कोई गवर्नमेंट नहीं है, बस एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा इंस्टीट्यूशन है जो कि उन सभी नेशंस को एक साथ बांध कर रखता है। अब क्योंकि उन सब का हिस्ट्री जो है कॉमन है, बांध कर रखेगा ताकि फ्यूचर में हम ये देखें कि हाँ पास्ट में हम कभी साथ थे, हमारे बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हो सकते हैं, हम एक दूसरे की जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, बाउंड नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं। बट ये कोई रिजिड या एक आप ऐसा नहीं है कि आपको इनके डिसीजंस को मानना ही पड़ेगा, बस आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर आप अपनी ओल्ड मेमोरीज को रिफ्रेश करके रख सकते हैं। तो CIS कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया। ये एक नया टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड ऑन किया गया, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी। अब ज़रा एक बार नोट्स की तरफ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 से कि उनमें क्या दिया गया। एक बार जब हम लोग बेटा पॉइंट 10 देखते हैं तो बट देयर वर फ्यू नेशंस दोज हु स्टिल वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द USSR। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेंटर एशिया के कुछ नेशंस रहे जो कि USSR का पार्ट अभी भी बनने को तैयार थे। इसके अलावा इसी पॉइंट में द डिसीजन टू स्प्लिट USSR इनटू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक वाज नॉट अ जॉइंट वन, यानी कि सभी नेशंस रिपब्लिक नेशंस या इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं बनना चाहते, इन सब लोगों ने मिलकर डिसीजन नहीं लिया। कुछ नेशंस अभी भी USSR के साथ काम करने को विलिंग है और अभी भी कुछ नेशंस जो हैं नहीं चाहते कि हम USSR के साथ किसी भी तरह के रिलेशंस रखें, पॉलिटिकली रिलेशंस नहीं रखना चाहते, जिसमें सेंटर एशिया के जो कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये वो नेशंस हैं जो कि सेंटर एशिया के रहे और इन नेशंस ने एक इच्छा जताई है कि हम USSR के साथ ही रहकर काम करना चाहते हैं। सेंटर एशिया बेटा प्लीज़ ये टर्म्स आप लर्न कर लेंगे, सेंटर एशिया, ईस्ट यूरोपियन नेशंस, और इनके अंदर कौन कौन से नेशंस आते हैं ये भी। सेंटर एशियन कंट्रीज वांटेड टू रिमेन इनसाइड USSR बट डिसीजन was taken against their choice, यानी कि उनकी जो चॉइस है उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया और रशिया ने वो सारा पावर या अथॉरिटी इंजॉय करने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, इन 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ द येल्सिन, ये बोरिस येल्सिन की बात की जा रही है, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस
मेजर कंट्रीज ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर दैट यूएसएसआर वाज बैंड, यानी कि बोरिस येल्सिन ने पावर मिलने के कुछ टाइम पीरियड के बाद ही ये कह दिया कि यूएसएसआर जो है बैन हो चुका है, अब वो वैसे कोई डिसीजन नहीं लेगा जैसे कि पहले लेता था, और अब वो कोई फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज जो हैं ऑफ यूएसए के थ्रू जो फॉलो की जा रही थी थ्रू आउट कोल्ड वॉर वॉज अडॉप्टेड बाय पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। बेटा पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स वर्ड यूज़ किया गया, ध्यान से देखेंगे प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट 12th में अंडरलाइन किया गया, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। अब 1991 के बाद जितने भी नेशंस यूएसएसआर का हिस्सा रहे हैं, 15 जितने भी नेशंस हैं रशिया को मिलाकर भी, उन सभी के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, क्योंकि पास्ट में कभी ना कभी आप यूएसएसआर का पार्ट रहे थे, आप सोवियत सिस्टम का हिस्सा रहे थे। सिर्फ चैप्टर में उन्हीं नेशंस की बात जब की जाएगी तो पोस्ट सोवियत नेशंस वर्ड यूज़ किया जाएगा, आप प्लीज़ इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर लेड टू द सरप्राइज फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले से एज सच कुछ प्लान नहीं किया गया था कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं, बट बाद में एक सरप्राइज की तरह सामने आया, CIS को बनाया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द मेंबर nations were resolved by making them the founder members of the CIS। अब ये चीज़ याद रखिए कि शुरुआत में जो सेंटर एशिया ने एक इच्छा जताई है कि मुझे अभी भी यूएसएसआर के जो पुराने लीडर रहे हैं रशिया, उनके साथ काम करना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि हम दोबारा से उनके साथ काम कर पाएंगे और हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम लोग आपस में मिल पाएंगे या फिर बात कर पाएंगे। हम लोग जब बेटा पॉइंट नंबर 14, 15, 16 को जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास है ना एक नई चीज़ सामने आएगी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई तो ऐसा नेशन हो जो कि यूएसएसआर ने जो भी इंटरनेशनल लेवल पर सिग्नेचर्स किए हैं या जो लीगल लेवल पर या पॉलिटिकल लेवल पर जो एग्रीमेंट साइन किए हैं या फिर उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो आगे आप किसी को ट्रांसफ़र कर सके। तो हमारे पास 15 नेशंस की जो टीम है या जो एक अलाइंस था, यूनियन था, उसके अंदर हमारे पास एक ही नेशन सामने आता है, वो है रशिया, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग पावर में या फिर ये कह सकते हैं कि पावर को ज़्यादा इन्जॉय या सेंट्रल तरीके से जो इन्जॉय किया है वो रशिया ने किया। तो रशिया को सारी की सारी पावर यूएसएसआर की ट्रांसफ़र की गई और पावर के साथ साथ जो लीगल लेवल पर डिसीजंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, आर्म्स हैं या कोई और जो मेंबरशिप थी वो सारी की सारी रशिया के पास ट्रांसफ़र कर दी गई। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कहा था कि नाम के अलावा एक और अल्टरनेटिव फैक्टर है जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है उसे हॉट वॉर या शूटिंग वॉर में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो नाम के अलावा हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हो गया। और यूएनओ के ना बेटा कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, हम बेसिकली चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि ये पॉइंट अभी यूज़ होगा 14th पॉइंट में कि यूएसएसआर के पास यूएनओ की मेंबरशिप रही, वो मेंबरशिप भी रशिया के पास ट्रांसफ़र हो गई। यूएनओ का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। नोट्स में आप ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 14 में लिखा है जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास 15 मेंबर नेशंस का ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह या फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन की तरह काम करता है। इस ऑर्गन में 15 मेंबर नेशंस होते हैं, 5 परमानेंट और जो 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शन हर 2 साल बाद होते रहते हैं और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हमेशा वही हैं और इनके इलेक्शंस नहीं होते, ये फिक्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसमें जो यूएसएसआर का जो सीट था वो ट्रांसफ़र किया गया रशिया के पास और रशिया ने सारी की सारी जो पावर अथॉरिटी को टेक ओवर किया और सारी की सारी पावर एंजॉय भी की, ड्यूटीज़ भी मिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। हम एक बार नोट्स में देख लेते हैं दैट रशिया वॉज एक्सेप्टेड एज अ सक्सेसर नेशन ऑफ द यूएसएसआर
Russia inherited the seat of the UNO's Security Council as one of the permanent member. Next point, Russia as a successor accepted all the international treaties and the commitments of the USSR, यानी कि पावर्स के साथ साथ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिली हैं. जो रशिया है नेक्स्ट पॉइंट में टुक ओवर एज दी ओनली न्यूक्लियर स्टेट्स, यानी कि जितने भी नेशंस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, वो सारा का सारा जो न्यूक्लियर पावर है वो भी सिर्फ रशिया को मिला. अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बेटा नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूएसएसआर के साथ प्रॉब्लम क्या है और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है. तो पहला हम रीज़न पढ़ते हैं क्योंकि जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, फ्रीडम नहीं है लोगों के पास, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लोगों के पास गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की पावर नहीं है. डोमिनेंस रहा रशिया का बहुत लंबे टाइम पीरियड तक. एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने लगा डिफेंस के ऊपर, मिलिट्री सोल्जर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाने लगा, जिसकी वजह से हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स सामने आने लगी. डेमोक्रेसी नहीं थी, गवर्नमेंट जो है अनअकाउंटेबल होती जा रही थी, लोगों के सवालों का जवाब देने बंद कर दिए गए थे, और वन पार्टी डोमिनेंस रहा जिसकी वजह से पॉलिटिकल लेवल पर भी स्टैग्नेशन जैसी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ी. बेटा इसके साथ हम ये टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं और जो आपका नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे आपके कि दोनों टॉपिक्स में अब तक हमने जो पढ़ा दैट कि सोवियत सिस्टम क्या था, गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ क्या थी और डिसइंटीग्रेशन के पीछे रीजंस क्या हैं. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, और उसमें हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि गोर्बाचेव कैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उसकी पॉलिसीज़ कैसे रोल प्ले कर रही हैं. सोवियत सिस्टम में अपने आप में क्या प्रॉब्लम थी जो लोग वेस्ट से ज़्यादा इंस्पायर होने लगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू सो मच.